खिलन का जाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै। सिर दीजै कान न कीजै। सूरा सो पहचानिए। जो लरै दीन के हेत। पुरजा कट मरै। कबहू ना छाड़ै खेत। गगन तमामा बाजयो। परयो निशान काओ। खेत जमांड्यो सूरमा। अब जूझन को दाओ। मरण मुनसा सूर्या हक है। जे होए मरण परवानो। सूरे से आगे आखिया है। दरगह पावह साची मानो। दरगह मान पावह पत स्यो जावह। आगै दुख न लागै। कर एक त्यावह ता फल पावह। जित सेवियै भउ भागै। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आप जान जानो। मरण मुनसा सूर्या हक है। जे होए मरण परवानो। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत गुरगद्दी ते विराजमान। चवर छतर तखत दे मालक। जाहरा जहूर हाजरा हजूर। बाणी ते बोहित नाम ते जहाज। राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत। वडभागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरामत सदका। कलगीधर पिता सरबंस दानी पंथ दे बाली अमृत दे दाते। दसवें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चारे साहिबजादे माता गुजर कौर जी। पंजां प्यारियां विचों तीन प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी ते होर महान गुरु के सिंघां दे जो शहीदी दिवस चल रहे हैं। और दसवें पातशाह कलगीधर पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पुरब भी आ रहा है।
ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ, ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ, ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭਉ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਚਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਐਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੀ ਉਚਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜੇਗਾ।
ये सबूत है, ये प्रूफ है जो साडे सतगुरु महाराज ने जीवन जीव के दिखाया। 239 साल 10 जामिया के अंदर गुरु की बाणी, तो जे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की रचना करनी होंदी तो एक जामे में भी हो सकती सी। ये लिए 10 जामे ला के 1469 तो लैके 1708 तक 239 साल का समा लाने की जरूरत नहीं सी। वो समा इसे करके लाया जिवें बच्चे नूं किसी काम नूं उहदे सामने करके दिखाईदा। इसे तरीके गुरु महाराज ने गृहस्थी जीवन के अंदर किवें उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ के एक महान जीवन गुरु के सिख ने जीवना है, ये महाराज ने साडे लई एक सबूत, एक नमूना, एक आदर्श जीवन जिहड़ा वो महाराज ने सानूं सिखाया। और गुरु के सिखां ने, महान गुरु के सिखां ने वो जीवन जी के प्रतख तौर के उत्ते आत्मक जीवन नूं प्रैक्टिकली किवें जीवन के अंदर जीवना है, ये महाराज ने सानूं स्पष्ट तौर के उत्ते। कई तो होंदियां ना, असीं फिल्मां देखते हैं, मूवी देखते हैं, परदे के उत्ते चीज़ां देखते हैं, ये सच्चाई विच जीवन जीविया जो गुरु महाराज ने और गुरु के सिखां ने शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां। इन्ना महान विरसा है साडा, और यही साडी कौम की ताकत है, यही साडी कौम का वडप्पन है, यही साडी एक न्यारी हस्ती है। जिथे लोगों के मजहबां के अंदर किते कोई एक शहीद हो गया, उन्होंने अपने एक पैगंबर की एक शहादत नूं लैके अपने कौम का, अपने मत का इन्नी वड्डी पद्धर के उत्ते प्रचार किया कि बहु गिनती के लोग उस रस्ते पर तुर पे। पर जिथे जदों असीं अपनी कौम की गल करते हैं, अपने इतिहास की गल करते हाँ, तो साडा इतिहास शानदार इतिहास शहीदियां की मजबूत नीहां ते खड़ा है। किसी शायर का यह कहना, किसी कौम की ताकत जे देखनी है, कदे गिनो ना उहदे मुरीद किन्ने, बंदे गिनो ना सगों एक करो गिनती, उस कौम विच होए शहीद किन्ने। शहीद किसी भी विचारधारा नूं अमली तौर के उत्ते गवाही दे करके उच्चा साबित कर देंगे हैं। वेखो गिण के कुल संसार दियां कौमां, किहड़ी कौम नीवी, किहड़ी कौम उच्ची। जिस कौम दे होण शहीद बहुते, उस कौम दी हुंदी है धौन उच्ची। सानू अपने इतिहास दे उत्ते गर्व है, प्राउड है सानू अपनी महाराज की दिती हुई बाणी के उत्ते। जदों असीं गुरु महाराज की बाणी नूं समझांगे, सरबत के भले की विचारधारा वाली एडी उच्ची सुच्ची, जिहदे अंदर कोई वहम भरम नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई भेख नहीं, जिहड़ी सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा की वडियाई करके, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह करके उच्चे सुच्चे जीवन को जीव के सानू परमात्मा के नेड़े करती है। इस करके सानू अपनी बाणी के उत्ते, शब्द के उत्ते और अपने इतिहास के उत्ते गौरव है। और उसे गौरव नू अनुभव करना, उसे गौरव नू अपने अंदर फील करना, भावनात्मक तौर के उत्ते जदों असीं उस नाल जुड़ते हैं तो उहदा असर साडी अमली जिंदगी में आउंदा है। सानू मुश्किलों के अंदर जूझण वास्ते प्रेरणा मिलती है। चढ़दी कला विच रहण दा सानू गुरु महाराज बाणी दे राही इतिहास के अंदर ढंग ते तरीका दसदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी और गुरु महाराज के इतिहास विचों सानू अमली तौर के उत्ते अपने जीवन के अंदर जिहड़ियां चुनौतियां आउंदियां ने, चाहे वह समाजिक तौर के उत्ते होवे, परिवारक तौर के उत्ते, आर्थिक तौर के उत्ते होवे, धार्मिक तौर के उत्ते होवे, उन्हां चुनौतियां नूं किवें जीवन के अंदर उन्हां दा मुकाबला किया जाता है, ये समझ भी सानू गुरु इतिहास तो मिलती है। इस नज़रिए नाल भी जदों असीं गुरु की बाणी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली सानू जिंदगी के अंदर बहुत वड्डी जिहड़ी है महाराज की कृपा के नाल ऐसी बख्शिश हुंदी कि असीं आनंद और सहज के अंदर ते चढ़दी कला विच जीवन बतीत कर सकते हैं। तो ऐसा साडा महान इतिहास है। आपां इन 4-5 दिनों के अंदर खास तौर के उत्ते जो ये शहीदी हफ्ता चल रहा है, जदों कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने
आनंदपुर साहब का किला खाली किया। उस तो बाद परिवार विछोड़ा होया, बड़े साहिबजादियां की शहादत हुई, छोटे साहिबजादियां की शहादत हुई, माता गुजरी जी की शहादत हुई। ये सारा जोड़ा इतिहास है। और कलगीधर पातशाह महाराज जी का आगमन पुरब भी है 29 नूं, वो भी असी चढ़ती कला के अंदर सतगुरु महाराज जी की कृपा के नाल मनाना है। तो आओ जो ये विचारां की लड़ी है जो आप आरंभ करते हैं, सारी संगत सबना नूं बेनती है, आओ एक बार सारे रल के महाराज के चरणों में फतेह बुला लीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जदों संसार के अंदर आउंदे ने ते जिहड़े इत्थों के हालात सन, क्योंकि आपां नूं ये विचारना चाहिए कि आखिर सानूं इन्नियां शहीदियां क्यों देनियां पईयां, इन्ना संघर्ष क्यों करना पिया, इन्नियां कुर्बानियां दा भरिया साडा इतिहास क्यों है, इन्नियां जानां गुरु के सिखां नूं क्यों मारनियां पईयां। क्योंकि दुनियावी तौर के उत्ते हिंसा या झगड़ा या लड़ाई या जंग ये कोई बहुत वधिया गल नहीं कही जाती। जीवन का हक दुनिया के अंदर हर एक बंदे नूं है, हर एक नूं जीवन प्यारा हुंदा है। और महाराज ने बाणी के अंदर सानू अच्छे सुच्चे जीवन की जांच ही सिखाई है। पर गुरु महाराज ने जिहड़ा सानू जीवन सिखाया, वो जीवन ऐसा सिखाया जिस जीवन के अंदर महाराज ने हमेशा एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी आइडियालॉजी जिस दे अंदर समाज विच किसी भी तरीके दे नाल कोई बंदा किसी नाल धक्का ना करे, नजायज ना करे, बेइंसाफी ना करे, कोई किसी की अज्ञानता का नजायज फायदा उठा के उसकी लुट खसुट ना करे। दुनिया के अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म नूं स्थापित करने वास्ते जदों लोग रब नूं भुल चुके सन, कूड़ झूठ ही प्रधान सी, धक्केशाही दुनिया के उत्ते भारू सी, जिन्हों महाराज ने बाणी विच लिखिया। क्योंकि जदों सिख कौम पैदा हुई संसार के अंदर, जदों गुरु नानक साहब महाराज संसार के उत्ते आए, उस वेले झूठ ही झूठ प्रधान सी। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, धर्म का खंभ ला के उड़ चुका सी। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे ना ही कह चढ़िया। उत्थे तां जिवें काली बोली हनेरी रात मस्या दी हुंदी है, जिथे हनेरा ही हनेरा हुंदा है, किते चानण नहीं नजर आउंदा। दुनिया के अंदर झूठ ही प्रधान सी। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। गुरु नानक साहब महाराज ने बाणी के अंदर रखा, कहने लगे दुनिया के अंदर शर्म धर्म नाम की चीज़ नहीं रह गई, झूठ ही झूठ प्रधान हो गया। बेईमानी ठगी चोरी सारे पासे फैली हुई है। अज्ञानता ते ना समझी के अंदर दुनिया असल रब का रस्ता छड्ड के भटक चुकी है। रब वाले रस्ते की पता नहीं है बंदे नूं, ते जिन्हों रस्ते का पता ना हो, या तो उन्होंने कोई चंगा बंदा टकरे जिहड़ा उन्होंने दसे भी आ रस्ता, नहीं तो लोग उसका नजायज फायदा उठा के उन्होंने गुमराह करके उसका शोषण करते हैं। धार्मिक तौर के उत्ते लोगों के मनां के अंदर ऐसी अज्ञानता सी, महाराज ने आके सच धर्म की सूझ दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी को 9 साल की उम्र के अंदर जदों जनेऊ पाण लगे तो महाराज ने आख्या, भाई अमली जीवन के अंदर जे दया सत संतोख धर्म धीरज नहीं है, फिर बाहरी धर्म के आडंबर का की फायदा है। गुरु नानक साहब महाराज ने एक जागरूकता पैदा की, एक अवेयरनैस धर्म के खेत्र के अंदर पैदा की भी अपनी ना समझी दे नाल जीवन जिहड़ा वो ना बतीत करो। समझो कि केड़ा असल धर्म है। ना समझी के अंदर जिहड़ियां गल्लां तुसीं धर्म समझ के करी जा रहे हो, उहदे विच सिर्फ खुआरी हो रही है, असल रस्ते ते नहीं तुसीं तुर रहे। इसे करके महाराज ने इन्नियां उदासियां कीतियां। गुरु नानक साहब महाराज किथे किथे गए, मक्के काबे तक गए, सुमेर पर्वत ते गए, हरिद्वार बनारस गया, काशी किथे तक महाराज गए। क्योंकि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने सुल्तानपुर नौकरी करदियां मोदी की यह गल देख लई सी कि हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर हाहाकार मची पई है।
ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸੋਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਫਿਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਡਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਸ਼ਬਦ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ
जदों बाबर आया तो उसने एमनाबाद के अंदर बड़ी वड्डी पद्धर के उत्ते कतलो गारत की। बाजार लाशां नाल भर गए, गलियां खून दियां नाल सड़ गईयां, नालियां खून नाल भर गईयां, थां थां के उत्ते इंसानी जिस्म रुलते रहे। महाराज ने बाणी में लिखिया, बाबर के हमले के नाल संबंधित महाराज ने 4 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखे। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। महाराज कहते ने इती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया। इन्नी मार पई हिंदुस्तान के अंदर बाबर के हमले नाल लोकां। कहाँ सो खेल तबेला कोड़े, कहाँ पेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गा डेरड़, कहाँ सो का लाल कवाई, कहाँ सो पान तमोली हरमा होइयां शाही माई। महाराज ने पूरा एक जड़ा चित्रण है पिक्चराइज किया महाराज ने शब्द के अंदर, जिमें उस एमनाबाद के अंदर बाबर के सिपाहियों ने कतलो गारत की ते उस वेले गुरु नानक साहब महाराज भी एमनाबाद के अंदर सन। ते महाराज ने भी कैद किया गया। चक्कियां महाराज को चलाने वास्ते कहा गया, महाराज की चक्की अपने आप चलती सी। जदों कैद के अंदर गुरु नानक साहब के भाई मरदाना ने रब्बी बाणी का कीर्तन कर रहे हैं, इन्हां शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ते जिहड़े सिपाही ने जदों उन्होंने महाराज के दर्शन किए, बाणी सुनी, महाराज के चेहरे का नूर तकिया और बाबर नूं सदिया भी असी जिहड़े एमनाबाद विचों लोग फड़े, इन्हां दे अंदर एक फकीर भी है नानक, वो अपनी रसना तो जिहड़ा कलाम पढ़ रहा है। जदों असीं उहनूं पुछया भी ये की पढ़ रहा है, तो उन्होंने दस्सिया कि तुहाडे इस हमले का जिहड़ा जिक्र है इस शब्द के अंदर। ते बाबर दर्शन करने वास्ते आया गुरु नानक साहब महाराज दे, ते महाराज ने आख्या सी बाबर तू जाबर है, तेनू जे रब ने ये सियासत दिती है, तेनू जे बल दिता है, तेनू जे ताकत दिती है, ते इन्हें निहत्थे लोगों के उत्ते, इन्हां निहत्थे लोगों के उत्ते तू जुल्म किया है, रब की दरगाह के अंदर तेनू हिसाब देना पएगा, रब तो खौफ खा। गुरु नानक साहब महाराज ने बाबर नूं जाबर कह के उन्होंने ये गल समझाई कि दुनिया के अंदर जे तेनू कोई राज भाग मिलता है तो राज भाग से बैठे बंदे नूं रब के भाव में रहना चाहिए, धक्का नहीं, बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक साहब ने उन्होंने हक के अंदर आवाज़ बुलंद की। कहने तो भाव गुरु नानक साहब महाराज जी नूं कोई भाव नहीं सी। गुरु नानक साहब नूं सिर्फ रब के उत्ते टेक सी ते रब की गल दुनिया नूं सुनाउण वास्ते गुरु नानक साहब महाराज आए सन। चाहे वक्ती तौर के उत्ते इहो जिहियां ताकतां जिहड़ियां सतगुरु महाराज जी के इस मिशन नूं, इस विचारधारा नूं समय समय उत्ते कोशिश करदियां रहियां भी इहनूं खत्म कर दईए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी इसे करके हुई, तत्ती तवी के उत्ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं बिठा के तसीहे दे करके शहीद किया गया। की सी गुरु अर्जन देव जी का दोष? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आदि स्वरूप की तैयारी कराई गुरु अर्जन देव महाराज ने। श्री दरबार साहब की इमारत निर्माण कराई, साईं मियाँ मीर के कोलों इस दरबार साहब का नींह रखवाया, 4 दरवाजे रखे समुची मनुखता के भले वास्ते। ब्राह्मण खत्तरी सूद वैश उपदेश चौं वरना को साझा। सुखमनी साहब वर्गी निर्मल बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उच्चारण की, जिस दे अंदर निरोल परमात्मा की वडियाई है। तरन तारण साहब, शरटा साहब, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इहो जे करतारपुर साहब इहो जे नगरां का निर्माण कराया गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। कोड़ी घर बनाए गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। जे काल पै गया तो उत्थे मदद की, पर तत्ती तवी के उत्ते बिठाया गया। सिर के अंदर उबल की रेता पाई गई, आलूआं वांगू पानी के अंदर उबाल दिता गया। क्या अपराध संत है कीना? संत ने किहड़ा कसूर किया? गुरु महाराज का दोष की सी? संसार के अंदर जे बंदा माड़ा जिहड़ा है वो तो चलो माड़े बंदे नूं किसी काम की सज़ा दी जाए सियासी ताकतां वल्लों, ये तो गल समझ पैंदी है, पर एक धर्म की गल करने वाले, नेकी की गल करने वाले, सरबत के भले करने की गल करने वाले रब के पुरुष नूं इन्ने तसीहे दिते गए। इसका मतलब ये सी कि वो ताकतां कदी नहीं सी चाहुंदियां कि संसार के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों को सच नाल जोड़िया जाए, धर्म नाल जोड़िया जाए, उन्होंने
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਜੇ 5000 ਬੰਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ 2 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਢਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ, ਪੀਲੂ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਲੋਹਾ ਲੱਖਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ
गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करा दिता। जहांगीर के कन्न भरे भी गुरु महाराज ने खुसरो की बगावत की है, जबकि गुरु महाराज का इहो जिहा जीवन के अंदर कभी किसी का व्यक्तिगत जिहड़ा राजनीतिक मसला महाराज वो अंदर कभी उलझे ही नहीं। पर जिहड़े लोग नजायज़ फायदा उठाउंदे हालातां दा, बड़े लोग जदों हालात इदां दे होण ते उहदे विच दूजे दे खिलाफ कन्न भर दिंदे। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने बगावत कर दी ते शिकायत हो गई भी खुसरो की मदद की गुरु अर्जन देव जी ने, झूठी शिकायत ला के गुरु महाराज को गिरफ्तार करा के शहीद करा दिता। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय औरंगजेब सी, उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय जहांगीर सी, गुरु नानक साहब महाराज जी के वेले बाबर सी। ते उस वेले फिर देखो 6वें पातशाह का समा आ गया, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्होंने सिर्फ गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के उत्ते सिर्फ ये नहीं किया भी गुरु अर्जन देव जी की शहीदी बड़ी महान है, गुरु की बड़ी महानता वडियाई नहीं, उन्होंने महाराज ने यह भी देखा भी ये क्यों हो रहा है। जहांगीर दियां कोशिशां की ने, जहांगीर तो अपने वालों खत्म कर रहा है, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां धारण की। वो चुनौती कबूल करके उस नूं समझ के महाराज ने अगों श्री अकाल तख्त की सिरजना की भी जहांगीर का हुण मुकाबला किवें करना है। जहांगीर ने तो अपना काम कर दिता शहीद करके, पर हुण जहांगीर दियां मन मर्जियां बहुती देर जे चलन दित्तियां जाणगियां फिर तो वह खत्म कर देगा, फिर तो वह कामयाब हो जाएगा। इतिहास इस करके हुंदा है कि असीं समझ सकीए कि जीवन के अंदर जे कोई चुनौती आउंदी है तो उसका मुकाबला करके असीं अगे किहड़े कदम चुकने ने। ये सानू गुरु महाराज ने अपनी जीवन काल के दौरान करके दिखाया। दुनियावी तौर के उत्ते भी साडे सामने जीवन में कई चुनौतियां आ जांदियां। एक बंदा बिजनेस है, बिजनेस से घाटा पै जाता है। हुण ये तो नहीं ना भी घाटा पै गया तो सिर सुट के बह जाए, निराश हो जाए भी ये तो बहुत घाटा पै गया जी, मेरा कंपीटीटर तो बहुत बड़ा। महाराज ने आख्या नहीं, की है जहांगीर है सामने, निराश होने की जरूरत नहीं है। सिखो हथियारबंद हो जाओ, तुसीं भी हुण शस्त्रधारी हो जाओ, तुसीं भी अपने अंदर ताकत पैदा करके मुकाबला करो। निराश होने की तो जरूरत नहीं है। डिसहार्टन करना चाहता सी जहांगीर गुरु महाराज को, महाराज कहने लगे ये तेरी कोशिश में तू कामयाब नहीं होएगा, असी अगों नालों ज़्यादा चढ़ती कला में होवांगे, अगे नालों ज़्यादा मेहनत करांगे, अगे नालों ज़्यादा जोर लावांगा। पर अपने जिहड़े कारज की आरंभता गुरु नानक साहब महाराज ने की है, जिहड़ी कौम की सिरजना गुरु नानक साहब महाराज करके गए ने, उसनूं अधवाटे नहीं छड्डिया जाएगा। वड्डे कदम चुके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने। उत्थे भी कई लोगों ने गल्लां करनियां शुरू कर दियां जी, देखो गुरु घर के अंदर हथियारां दा की काम है, शस्त्रां दा की काम है, तलवार दा की काम है। आ महाराज की हजूरी के अंदर तेगां पईयां ने, कड़ाह प्रशाद की देग उन्नी देर तक प्रवान नहीं होंदी जिन्नी देर तक श्री साहब नाल छुआया ना जाए। ये साडी परंपरा है, ये साडी परंपरा गुरु महाराज ने उस वेले स्थापित की जदों बंदा जवान की गल नहीं सी समझदा। बड़ा गुरु अर्जन देव महाराज ने सबर रखा, सहनशीलता रखी, धीरज रखी। इस तो ज़्यादा पेशेंस की और हो सकती है भी एक बंदा नजायज़ इल्जाम लगा के इन्ना धक्का कर दे, महाराज बोले तक नहीं, किसी को उलांभा तक नहीं दिता गुरु अर्जन देव महाराज। अपनी रसना तो किसी को भैड़े बचन नहीं आखे, सिर्फ सबर रखा, सिर्फ शांति रखी, इन्ने तसीहे बर्दाश्त करते, कसूर 0%। किड्डा वड्डा धक्का है, बंदे का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ झूठे इल्जाम लगा के इन्ने तसीहे दे के खत्म कर दो, अखीर हद है बंदे की। फिर महाराज ने आख्या भी हुण कोई चारा नहीं है, हुण शस्त्र चकना ही पैना, हुण ये जबान दी गल्लां नहीं समझदा। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या, जूंकार अज हमा हीर ते दरगुजश्त, हलालस्त गुरदन बाशम शीर दस। When all means of redressing a wrong have failed, raising of sword is pious and just. जदों सारे ढंग वसीले किसी गलत गल नूं दूर करन दे खत्म हो जाण, ना चलण, फिर तलवार की मुठ नूं हथ पाना जायज़ है। फिर बल का प्रयोग करना पेगा। जिहड़ा काम सौखा नहीं होंदा फिर उन्होंने जोर नाल करना पैंदा है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मीरी ते पीरी दियां गुरता गद्दी के उत्ते बैठन लगियां 2 तलवारां पा लईआं। पहली बार होया, 5 जामियां तक नहीं सी ये गल। एक नवीं चीज़ गुरु महाराज ने शुरू कर दी। असीं कोई नवीं चीज़ शुरू करे सी कि किद्दां उस कर
ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੰਥ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, 5 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। 4 ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ। 1606 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। 1644 ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। 1644 ਤੋਂ 1661 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। 1661 ਦੇ ਅੰਦਰ 1664 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ 1664 ਦੇ ਅੰਦਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। 1664 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 11 ਸਾਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਕਨਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਡਾਢਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਗਰੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤਰਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਰਸਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਣੋਂ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਜਿਸ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਤਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ, ਜਨਮ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਾਹ ਮਚੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ,
कितों श्रीनगर तो अमरनाथ की गुफा के अंदर बह के जो सारे पासे निगाह मारी, राजपूत मराठे किसी के पल्ले कख नहीं सन, किसी के कोल ताकत नहीं सी भी औरंगजेब का मुकाबला कर सके, किसी को उन्होंने सहायता नहीं मिली। तो उस वेले भी उन्होंने निगाह हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एको ही इहो जिहा केंद्र सी, गुरु नानक का घर सी, जिसने शुरू तो ही जिसका मिशन ही सी, जिसका मकसद ही ये सी भी जिथे लोग ना समझी करके, अज्ञानता करके, कमजोरी करके धक्केशाही का शिकार हो रहे हैं, चाहे वह धार्मिक आगू कर रहे तो चाहे वह सियासी आगू कर रहे, गुरु नानक साहब महाराज ने उन्होंने बांह फड़ी। जिथे जिथे समा बनया, जो श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की तो जोड़े सताए हुए लोग होंगे सन, जोड़े लिताड़े होंगे सन, जिन्हों के उत्ते धक्का होंदा सी, वो सारे श्री अकाल तख्त साहब आते सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को सच्चा पातशाह कहते सी, इंसाफ वास्ते कहते सी, तो महाराज उन्होंने सहायता करते सी। जे किते कोई बीमारी फैल जाती सी, गुरु साहब अगे हो करके लोगों की मदद करते सी। इसे श्रीनगर के अंदर जदों अकाल पिया तो महाराज ने उस वेले लोगों की जाके बांह फड़ी। उत्थों के लोगों को पता सी एक क्रैडिबिलिटी होंदी है कौम की, एक इंप्रैशन होंदा है संसार के अंदर भी इस समय कित्थे जाइए। तो उस वेले उन्होंने सिर्फ एको थां तो ही आस सीगी भी जे हुण साडी कोई मदद कर सकदा तो गुरु नानक साहब महाराज जी की गद्दी के वारस आनंदपुर साहब की पावन नगरी ते नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कर सकते। फिर सारे इकट्ठे होकर के किते नहीं गए, एडा वड्डा हिंदुस्तान सी, आ तो निक्का जिहा नगर सी आनंदपुर, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वसाया सी। तुसीं देखो एडा वड्डा हिंदुस्तान, एड्डी वड्डी गिनती के अंदर होर कई जथेबंदियां होणगियां, कई मजहब होणगे, पर अखीर ढोई कित्थे मिलनी सी, मिली उस आनंदपुर की छोटी नगरी विचों, जिसनूं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने दीप चंद कहलूरीए की घरवाली कोलों उस वेले का 700 रुपया दे के ये नगर बनाया सी आनंदपुर साहब। ये नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बनवाया। गुरु साहब ने ये सारे नगर बनवाए जिथे महाराज ने प्रैक्टिकली सिख कौम को जीवना सिखाया। सानू कई बार इन्हां नगरां दा इंपोर्टेंस नहीं पता हुंदा। गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर जिहड़ा पाकिस्तान विच है, ये महाराज गुरु नानक साहब ने बनाया, जिहदा सुरक्षित लांघा जिहड़ा सानू मिलिया, जिथे गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी जिंदगी के अखीरले 18 साल बतीत किए। खडूर साहब की पवित्र धरती गुरु अंगद देव जी ने वसाई, गोइनवाल की पवित्र धरती गुरु अमरदास महाराज ने वसाई, श्री अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास महाराज ने कराया, तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तरन तारण बनाया, शरटा बनाया, करतारपुर बनाया जिहड़ा जलंधर के लगे। इहो जे नगर कीरतपुर साहब बनया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के समय बाबा गुरदित्ता जी के राही वसाया गया। तो ये आनंदपुर की नगरी जिसका पहला नाम चक नानकी सी, ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वसाई है। ये बाजार, ये गलियां, ये दुकानां, ये सारिया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने जीवन काल के दौरान आप अपनी निगरानी हेठां तैयार करवाइए। ਜਿਹੜੇ महाराज बैराग की गल करते, ये मतलब ये नहीं है कि महाराज ने सानू जीवन के अंदर किसी तरह की उदासी या उपरामता जिहड़ी है बई, क्योंकि सिख गृहस्थी है, सिख सारे परिवार वाले, गुरु साहब भी परिवार वाले होए, संसार में किवें रहना पर निर्लेप होकर रहना, ये महाराज ने सिखाया। नगरां का निर्माण भी कराया, शहरों का निर्माण भी कराया, पर मोह ते पकड़ जिहड़ी है वो महाराज ने खत्म की। अभिमान नहीं करने वास्ते किया महाराज ने। ते जदों औरंगजेब के सताए हुए कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के कोल चल के आए, दुखिए विप्र जो चल के आए पुरी आनंद, बाह साडी पकड़ी है गुरु हरगोबिंद के चंद। आके उन्हां विप्रां ने, ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के चरणों में आके बेनती की, महाराज ये औरंगजेब भूतरे हुए हाथी की तरह सब नूं लिताड़न ते लगा होया है, पर तुहाडे वर्गे शेर दे हुंदियां ये मुंह दिखाएगा। सानू सिर्फ तुहाडा ही आसरा है, एक आसरा बाप गोसाई, गहों बां डुबत सब जाई, साडी बां फड़ लो, राखो अब हिंदुआं की टेक, नहीं तो जग में बचे ना एक।
नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खत्म हो जाएगा जे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तुसी साडी बाह ना फड़ी। अज हिंदू धार्मिक स्थानों के अंदर जिहड़े दीवे जग रहे ने असल के अंदर ये गुरु तेग बहादुर साहब का लहू बल रहा है। पाई खाद उस पुत ते पोतियां दी हिंदुस्तान का बाग तां ही फल रहा है। हिंदू मंदिरां दे दीवियां च अज भी लहू तेग बहादुर का बल रहा है। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत सी जिन्हें लोगों के अंदर इन्नी जागृति पैदा करती। लोग इहो जिहियां ताकतां दे अगे एक मुठ हो करके खालसा पंथ के रूप में डट गए। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की वडियाई सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने उस वेले उन्हां दी फरियाद सुन के उन्हां दी बांह फड़ी। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म न छोड़िए, बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दईए बांह ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख्या तुहाडी बांह फड़ लई है, तुसीं बेफिक्र हो जाओ, हुण ये मेरी जिम्मेवारी है, हुण ये मेरा ते औरंगजेब का काम है, तुसीं पासे हट जाओ। देखो किड्डी वड्डी बंदा तां किसी बंदे नाल कुछ हो रहा होवे ना ते मोड़ कट लैंदा दूजे पासे चलीए आपां की लैणा देना। एवें इन्हां लोकां दे नाल अपनी सोच यही है ना। जे किसी कोई गरीब नाल माड़े नाल कोई धक्का कर रहा, किसी की बच्ची नाल कोई नजायज़ कर रहा, कहंदा आपां की लैणा देना, अपना नुकसान कराना। ये बदमाश बंदे ने, ये डाढे बंदे ने, ते बंदा अपना रस्ता बदल देता। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी कह सकते सी मेरे नाल तां अजे तक कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि उहदी फरमान सिख कौम के खिलाफ नहीं सी औरंगजेब दे। गुरु घर के विरुद्ध भावें वो अपने अंदर एक ईर्खा रखता सी, पर सीधा हुक्म जिहड़ा उहदा सी वो मंदिर ढाण दा सी, वो जंजू लाण दा सी, वो हिंदुओं के उत्ते पाबंदी लाउण दा सी। ते गुरु नानक साहब महाराज ने तो पहले जामे के अंदर जंजू पाण तो इनकार कर दिता सी, वो तो साडी मर्यादा ही नहीं सी। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे इत्थे गल इंसानियत की है, इत्थे गल मनुखी हकों की है, ह्यूमन राइट्स की है। ये किवें हो सकता बंदा किसी नाल इन्ना जुल्म करे कि उन्होंने अपने धर्म की आज़ादी भी ना हो। समझाना किसी बंदे नूं होर गल है। गुरु साहब थां थां ते गए, लोगों को समझाया, पर धक्का नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं है किसी भी तरीके दे नाल। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख्या मेरा धर्म इस गल नूं कहंदा है भी जिथे किसी नाल धक्का हो रहा मैं उहदी खिलाफ डट जाऊँगा। जे कोई बंदा किसी नाल नजायज़ करता है तो धर्म ये गल सिखाउंदा है। जे वाकई कोई बंदा धर्म है कि उस नजायज़ गल के प्रति बंदे नूं हाँ का नारा जरूर मारना चाहिए, उस दे खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए है। क्योंकि जे इदा ना करेगा फिर तो डाढे लोगों का जालम लोगों का ही राज रहेगा, फिर रब का राज नहीं रहेगा। तो गुरु साहब तो संसार के अंदर रब का राज पैदा करने वास्ते आए सन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने हिंदू धर्म की खातर, तिलक जंजू की खातर, मनुखी हकों की खातर 1675 के अंदर दिल्ली के चांदनी चौक रखे जिथे गुरुद्वारा सीसगंज साहब सुशोभित है, उत्थे महाराज ने शहादत दी। धड़ तो सीस जुदा कर दिता गया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो, कलू मैं साका साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिरड़ ना दिया। ਜਿਹੜੀਆਂ शहादतां ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ने दित्तियां, छोटे ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ने दित्तियां, इन्हां दा मुੱਢ तां गुरु अर्जन देव महाराज बन गए सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दे के एक नींह रख दी सी, एक परंपरा चला दी सी, जिस परंपरा नूं गुरु के सिख अज तक फॉलो कर रहे हैं। अज तक गुरु के सिंह उन परंपरा नूं, गुरु महाराज की दित्ती हुई सोच नूं फॉलो करके कुर्बानियां ते शहादतां देते हैं। इस करके शहादतां देनियां पईयां क्योंकि गुरु महाराज ने आप दित्तियां। सिख इस करके धक्केशाही के जुल्म के खिलाफ डटदा क्योंकि गुरु महाराज ने सिखाया ही सिखां नूं ये है, गुरती ये है सानूं, ना किसी तो डरो तो ना किसी नूं डराओ। रब की गल करो, सच की गल करो, धर्म की गल करो, अणख ते गैरत नाल जीवन बतीत करो। अणख ते गैरत तो उपर कोई चीज़ नहीं है, सच्चाई तो उपर कोई चीज़ नहीं है। जिंदगी तो बहुत छोटी चीज़ है, ये जिंदगी असीं कई बार हंडा चुके हैं। महाराज ने इस जिंदगी के अंदर जिहड़ी चीज़ नूं अहमियत दित्ती, सरबत के भले की खातर परोपकार के कारज करन,
ये सब तो वड्डा महाराज का गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहादत दे के सरबत के पहाड़े का परोपकार का कारण सी। महाराज ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। 9 साल की उम्र सी उस वेले कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। जदों दिल्ली तो भाई जैता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का धड़ तो विहूणा सीस लैके आया, माता गुजरी बालक गोबिंद राय आनंदपुर साहब तो कीरतपुर साहब गए। और अपने मन के अंदर आप सोच के देखिए कि जेड़े सतगुरु इत्थे साडे कोल बैठे पूरन तौर के उत्ते ठीक ठाक गए दिल्ली, उन्हां दा सिर्फ सिर आवे, सिर्फ सीस आवे, वो किन्ना भावुक समा होएगा, किन्ना उस वेले गुरु के सिखां दे मनां दे उत्ते की बतीत हुंदी होएगी जदों अपने महाराज दा धड़ तो विहूणा सीस जिहड़ा वो सिर्फ देखे। पर उस वेले भी फिर जिवें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने समय की चुनौती नूं कबूल किया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद, 5वें गुरु की शहादत तो बाद हुण 9वें गुरु की शहादत हो गई। 5वें गुरु तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब सन ते 9वें गुरु तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा आ गया। तो महाराज ने भी फिर उस तरीके चढ़ती कला के अंदर निराश नहीं होने दिता। मैं पहला बेनती की जे इतिहास समझना है, जे इतिहास तो कुछ सीखना है तो ये सब तो वड्डी सिख जिहड़ी है मिलती है सानूं इतिहास तो भी। सिख कभी ढैंदी कला में नहीं जाता, सिख कभी निराश नहीं होता, सिख का दिल कभी नहीं टुटता। सिख वड्डी तो वड्डी मुश्किल नूं भी बड़े धीरज ते बड़े ठरम्मे दे नाल ते बड़ा मैंटल बैलेंस रख के सोचता है। गुरु के सिखां दे उत्ते किन्ना कुछ होया, बहुत कुछ होया, पर फिर गुरु के सिंघां ने रब दे उत्ते भरोसा रख के रजा के अंदर राजी रह के फिर चढ़दी कला दे बड़े समय आए। बड़े घल्लूकारे होए, छोटे घल्लूकारे होए, हज़ारां सिख एक दिन के अंदर शहीद होए, क्योंकि ये परंपरा साडा इतिहास ही ऐसा बने। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का धड़ तो बिना जदों सीस आया तो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक वचन कहे सी। महाराज ने आख्या सी ये हुण बहुत जुलम हो गया, बहुत धक्का हो गया। सीस चक के पिता का थाल विचों गोबिंद अपने हत्थां विच लैण लगे। ये कहर है, ये जुलम है, बेइंसाफ वड्डा कदों तक सहारिया जा सकता है। धर्मी पुरुषां संतां तपस्वियां दा कद तक सीस उतारिया जा सकता है। तपदी रहेगी जुलम की रेत कद तक, ते कद तक कहर गुजारिया जा सकता है। डुलदा रहा जे लहू बेदोशियां दा, गल बधी कृपान है किस कम दी, पए भज्जे विच तीर ने किस कम दे, मोढे टंगी कमान है किस कम दी। हुण मैं जमाने की बदल धारा जिंदगी मौत दे नाल टकरा देंगा, तारे जिन्हां इंसाफ दे डोब छड्डे, तारे उन्हां नूं दिने दिखा देंगा। महाराज कहने लगे हुण समा आ गया है, इस औरंगजेब की ताकत का मूँह तोड़ जवाब दिता जाएगा। खंडा फड़ के हथ में कहने लगे अमृत कढ़ांगा खंडे की धार विचों, ऐसा खालसा पंथ सजा देंगा जुल्म मिटेगा सारे संसार विचों। हुण संत सिपाही पैदा करांगा, खालसा पंथ एक वड्डी ताकत पैदा करांगा जिहड़ा औरंगजेब के जुल्म दी जड़ां वड्ड देगा। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने एक चुनौती सी ते महाराज ने खालसा पंथ की सिरजना की। 1699 की विसाखी में खंडे बाटे की पौर छका के महाराज ने सिख नूं सिंह बना दिता, संत सिपाही बना दिता, और एक ऐसी ताकत महाराज ने पैदा कर दी। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज, रब की मौज के अंदर परमात्मा की कृपा के नाल एक वड्डी ताकत है साडे खालसा पंथ। ये साडी कौम जिहड़ी ताकत है ये रब की कृपा नाल परमात्मा ने दिती हुई है संसार के अंदरों जुल्म का खात्मा करने वास्ते, सच धर्म की स्थापना करने वास्ते। तो उस तो बाद फिर जिहड़ा असल संघर्ष जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वेले तो शुरू होया, आने वाले दिनों के अंदर इस इतिहास की लड़ी नूं आपां अगे तोरांगे। वड्डे साहिबजादियां की जो शहादत है वह आप शाम के दीवाना के अंदर करांगे। फिर कल नूं 2 छोटे साहिबजादियां की शहादत, फिर अगले दिन जो गुरु महाराज का आगमन पुरब है वह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वो आप रल मिल के मनावांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा करन आप सबना नूं इस तरीके दे नाल सतगुरु महाराज जी की हजूरी के अंदर जुड़न का बल बख्शण दी विचारां करदिआं इतिहास दीआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा
फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की